Good morning, students. How are you all? Well, I hope you all are doing very, very well. So, let's start our GK class today. Today is Friday and our GK class day. So, we were doing the chapter Plant World. If you all remember, we were doing the chapter Plant World. I'm trying to finish your syllabus, your course as soon as possible so that we can start our revision and test and other things. All right. So we were doing this chapter Children Plant World. I would like to send you the exercise of this chapter. Now, this chapter has just one exercise. I have mentioned this in my previous class also that this particular chapter, chapter 10, Plant World, has just one exercise, exercise A. So, I have done this exercise for you. Please fill the exercise in your book. अपनी किताब के अंदर आप ये एक्सरसाइज यहाँ पर आंसर्स देखकर कंप्लीट कर सकते हैं ओके इसके आगे के जो पेजेस हैं वो नॉर्मल प्लांट्स एंड ट्रीज एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग मेडिसिनल प्लांट्स रेन फॉरेस्ट उन सब के बारे में इंफॉर्मेशंस है सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंड नाउ we will start a new chapter Garden of Flowers. Garden of Flowers. So, this is our new chapter, chapter 11 Garden of Flowers. So, let's do this chapter. I guess इसके बाद आपका खाली एक चैप्टर मेलोडियस म्यूजिक रह जाएगा. Well, we'll do that also. So let's welcome this new chapter, Garden of Flowers. We all know about flowers. My God, they give us energy. They give us peace. Flowers give us smile. आप सब ने नोटिस किया होगा whenever we see flowers, we smile. Whenever we are meeting anyone, if we are greeting birthday anniversary wishes, we give them flowers. Flowers are the symbol of love, happiness, peace. All right. So, if अगर आपके सामने आज ये स्लाइड है आप देख रहे हैं इसमें वैरायटी के फ्लावर्स हैं कितने कलरफुल और कितने सुंदर फ्लावर हैं जिनको देखते ही फेस पर एकदम से स्माइल आती है So, my sweet little children, I welcome you all in our GK class with a new chapter, Garden of Flowers, and we will discuss about variety of flowers, few gardens in India, etc., etc. You will love it. You will love it, I'm sure. So, please take out your GK books and Garden of Flowers, page 42. I want to tell you this, which I have written it for you. Our nature has given us a very lovely gift, which we know as a flower. Flowers have also given us many type of colors and beautiful fragrances. And flowers only enhance the, yes, correct, enhance the beauty. So, this is about flowers. So there are millions of species of flowers in this world. बहुत सारी variety है flowers की. So let's learn about few flowers. Let's learn about few flowers. हम कुछ फूलों के बारे में आपके साथ मिलकर बात करते हैं. ठीक है? Okay. Let's start. Now this flower, marigold. marigold बच्चों आपने देखा है जिसको हम हिंदी में गेंदा बोलते हैं गेंदे का फूल अगर आपने देखा होगा दिवाली पर डेकोरेशन में लगता है किसी भी मंदिर में पूजा होती है इस कलर का फ्लावर ज़रूर दिखाई देता है Am I right? Am I right? So basically ये पर्टिकुलर फ्लावर जो होता है ऑफ कोर्स भगवान जी को चढ़ाने के लिए होता है लेकिन इट सपोर्ट्स स्किन हीलिंग हमारी स्किन पे अगर कोई रैश या कुछ हुआ होता है तो दिस फ्लावर हेल्प्स दिस फ्लावर्स सूदिंग इफेक्ट देता है
and the name of the flower is marigold. गेंदा. In Hindi we call it गेंदा. marigold. डेजी. डेजी, आप फ्लावर देख रहे हैं. डेजी आपकी आंखों के सामने है ये फ्लावर, इसको बोला जाता है डेजी. आप अपने फ्लोरिस्ट के पास भी ये फ्लावर देख सकते हैं. सो डेजी का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डज डेजी मीन? सो बेसिकली डेजी सिंबलाइज इनोसेंस एंड प्योरिटी. ये वाला फ्लावर सिंबलाइज करता है इनोसेंस मतलब भोलापन एंड प्योरिटी शुद्धता. ओके, सो डेजी. द नेक्स्ट वन लिली. ये सारे फ्लावर्स आपने अपने फ्लोरिस्ट के पास देखे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट लिली, लिली जो फ्लावर है बच्चों, आप इसको देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत इसकी फ़ोटो है. और ये फ्लावर बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर है ये. सो अगर आपने लिली के फूल देखे हैं अपने घर के आसपास, लिली के फ्लावर्स, लिली के फूल कहा जाता है. नाउ if you talk about lily, so this flower is a symbol of fertility, purity and fertility. The sweet and innocent beauty of the lily flower has given it the association of fresh life, birth. सो लिली को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्योरिटी एंड फर्टिलिटी मतलब रीबर्थ. सो दिस इज द मेन सिंबल ऑफ फ्लावर लिली, जो कुछ ऐसा दिखता है. रोज़ तो सबको मालूम है, इज़ अ सिंबल ऑफ लव. रेड कलर रोज़, येलो कलर रोज़, वाइट कलर रोज़, या सो गुलाब का फूल, ये है गुलाब का फूल. ऑर्किड फ्लावर तो आजकल बहुत ज़्यादा हम सब फ्लोरिस्ट के पास हम देखते हैं. सो जो ऑर्किड फ्लावर है उसकी स्पेशलिटी क्या है? लेट्स सी दैट ऑर्किड फ्लावर की क्या स्पेशलिटी है. सो बेसिकली जो ऑर्किड फ्लावर्स हैं ओके, सो ऑर्किड फ्लावर जो है, इट बेसिकली अगर मैं आपको इसका बताऊं, इसका तरीका क्या है कि इसके जो सीड्स होते हैं, हाउ डू आई टेल यू, ओके लेट्स डू दिस. ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट, ग्रेसफुल एंड एग्जॉटिक प्लांट है, फ्लावर है सबसे ज़्यादा. तो ऑर्किड किसका सिंबल है? लव, लग्जरी मतलब रिचनेस, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ. ऑलराइट, सो ऑर्किड रिप्रेजेंट्स लव, लग्जरी, ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ. ओके, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फ्लावर. ये बहुत सारे कलर्स में आता है, वाइट, येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल ऑल्सो. And I must tell you बच्चों, ऑर्किड मेक एक्सीलेंट गिफ्ट्स फॉर लॉट्स ऑफ रीजन्स. ऑर्किड्स को हम किसी भी सेरेमनी पे कभी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में गिफ्ट दे सकते हैं. ऑर्किड्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है. अगर आप आज अपने घर में ऑर्किड लगाएंगे तो वो कम से कम 10 दिन तक ताज़ा रहता है, जल्दी से वो मरता नहीं है. सो वी कैन गिफ्ट ऑर्किड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ ओकेजन्स. किसी भी ओकेजन पे हम ये फ्लावर ईजिली दे सकते हैं. कार्नेशन इज अगेन अ फ्लावर. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कार्नेशन. सो कार्नेशन इज़ द फ्लावर. और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम चलो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फ्लावर कार्नेशन, कि ये व्हाट डज कार्नेशन सिंबलाइज. सो कार्नेशन डिफरेंट कलर्स के होते हैं बच्चों. सो इफ यू टॉक अबाउट लाइट रेड कलर, सो लाइट रेड कार्नेशन रिप्रेजेंट एडमायरेशन,
एडमायर करना। वाइट कार्नेशन रिप्रेजेंट गुड लक, गुड लक। सो कार्नेशंस में रोजेस की तरह ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का सिंबलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड रोज इज़ फॉर लव, वाइट रोज इज़ फॉर पीस, येलो रोज इज़ फॉर फ्रेंडशिप। सिमिलरली लाइट रेड कार्नेशन रिप्रेजेंट एडमायरेशन। हम किसी को एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके फॉन्ड ऑफ हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं कि वाओ यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो गुड, यू आर सो गुड एट योर वर्क। सो वी प्रेजेंट कार्नेशंस। कार्नेशंस आर द ब्यूटिफुल स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ट्यूलिप, ये सब वैरायटी के फ्लावर्स हैं जो हमारे बीच रहते हैं और इनको हम मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ट्यूलिप, सो ट्यूलिप, इफ़ आई टेल यू अबाउट ट्यूलिप्स, ट्यूलिप बेसिकली वेडिंग फ्लावर्स हैं जो शादियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, टेबल डेकोरेशन में, ब्राइडल बुके में, जनरल डेकोरेशन में, इन सब में हम ज़्यादातर ट्यूलिप्स का इस्तेमाल करते हैं, सेलिब्रेशंस में, इवेंट्स में। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन के बारे में आपको एक बात बताती हूँ मैं। ट्यूलिप गार्डन, द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की हम बात करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, ट्यूलिप्स को हमने अभी देखा, तो आप देखिए जिस गार्डन की मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, उस गार्डन में सिर्फ ट्यूलिप ही ट्यूलिप है, सिर्फ ट्यूलिप ही ट्यूलिप है और कुछ नहीं है उस गार्डन में। ओके, सो ये गार्डन आपको मिलेगा यूरोप में, ये गार्डन आपको मिलेगा यूरोप में, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ये आपको मिलेगा यूरोप में। और अगर हम अपने हिंदुस्तान, अपने भारत की बात करें कि यहाँ पर हमें ट्यूलिप्स कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन, कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है हमारे देश जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। आई होप आई एम क्लियर. I really wanted to tell you about this garden because I've been there and it's a very beautiful garden. Daffodil. Daffodil again is one of the variety of a flower. Daffodil, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितना खूबसूरत फ्लावर है ये daffodil. And daffodil symbolize basically is new beginning. एक नई शुरुआत के लिए डैफोडिल प्रेजेंट किए जाते हैं। सपोज़ करिए आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, आप नई क्लास में आ रहे हैं, आप एक नए कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं, नए स्कूल में जा रहे हैं, शादी हो रही है, कुछ भी नया है, न्यू इन लाइफ, उस समय के लिए हम डैफोडिल फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। सो दीज आर डैफोडिल। नाउ let's talk about these. Do you know a person who sells flower is called? हम क्या बुलाते हैं उनको जो फ्लावर सेल करते हैं? हम उन्हें बुलाते हैं फ्लोरिस्ट। हम उन्हें बुलाते हैं फ्लोरिस्ट। तो आप बच्चे अपने आप एक्सरसाइज भी फिल करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज. So you all will do this exercise on your own because it's a very simple exercise. You have rupees 300 to make a bouquet of flowers. आपके पास 300 rupees हैं to make a bouquet of flowers. So look at the price tag. आपकी एक्सरसाइज A में हर फ्लावर का जो हमने अभी डिस्कस किया है, मैरीगोल्ड, रोज, डैफोडिल, ट्यूलिप, ये सारे वैरायटी के फ्लावर्स हैं. So आपने
₹300 में अपनी मनपसंद फ्लावर का बुके बनाना है और इसमें लिखना है टोटल कॉस्ट आपका बुके कितने का पड़ा, 250, 290, 180 कितने का भी, और आपके पास 300 में से कितनी मनी बची। सिंपल, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ओके, यू हैव ₹300। आपने एक्सरसाइज ए में से फ्लावर्स पिक करने हैं, उन सब की मनी को प्लस करना है। सपोज आपने पिक किया मारी गोल्ड 1, आपने पिक किया हम जब इसके आंसर्स आप देखेंगे, इनमें आपको पहले आंसर्स लिखने हैं। मेरी वीडियोस देखकर आपने आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ₹5 का इसमें मारी गोल्ड है, ₹5 का। द नेक्स्ट फ्लावर ₹10 का है डेजी। नेक्स्ट फ्लावर ₹15 का है लिली। सो आपने मैम की ये वीडियो देखकर इन फ्लावर्स को, इस एक्सरसाइज ए को फिल करना है और उसके बेस पर एक्सरसाइज बी करनी है। ओके, एंड अ पर्सन हु सेल फ्लावर्स इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट, जो फूलों को बेचता है। सो सम ऑफ इंडियाज मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन्स। लेट्स टॉक अबाउट सम ब्यूटिफुल गार्डन्स ऑफ इंडिया। वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। अगर आज हम इस गार्डन की बात आपसे करें, ये गार्डन है मैसूर में। मैसूर कौन सी स्टेट में? कर्नाटका स्टेट की सिटी मैसूर में ये गार्डन है, वृंदावन गार्डन। आप ध्यान से देखिए इसकी पिक्चर को, ये गार्डन मैसूर में है। कर्नाटका स्टेट में ये गार्डन है और इस गार्डन की जो मेन अट्रैक्शन है वो इसके म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं। इतने खूबसूरत फाउंटेन्स हैं जो पूरे सारा टाइम म्यूज़िक और लाइट्स के साथ गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। There is also a lake within the garden with boating facility, and the most important, the main attraction of the garden is the musical fountain. Okay, now this garden, लाल बाग, इस गार्डन का नाम ही हिंदी में है लाल बाग। सो लाल बाग एक बोटानिकल गार्डन है और ये है बेंगलुरु, इंडिया में। अगेन हम इंडिया के गार्डन्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेंगलुरु में गार्डन है। और ये गार्डन भी अगेन आप ध्यान से अगर देखेंगे फूलों से ही भरा हुआ है। इस गार्डन की एक खासियत है, इस लाल बाग की एक खासियत है कि इसमें एक बहुत सुंदर ग्लास हाउस है। आप देखिए ग्लास हाउस, ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये ग्लास हाउस के अंदर ही ये पूरा गार्डन किस ढंग से बना हुआ है। सो ये है लाल बाग बोटानिकल गार्डन जो कि बेंगलुरु शहर में है। ओके, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम इसका ऐसा क्या स्पेशल है, तो बच्चों स्पेशल क्या, ये बेंगलुरु शहर का ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन है और इसमें एक से बढ़कर एक फूल है। सो बेसिकली लाल बाग इज़ होम टू एग्जॉटिक फ्लावर्स। और कहाँ कहाँ से ये फ्लावर्स जो हैं इंपोर्ट किए जाते हैं, फ्रांस, पर्सिया, अरेबिया, अफ़गानिस्तान, इन सब जगहों से फ्लावर्स ला कर यहाँ पर रखे हैं और वहाँ के माली जो वहाँ के गार्डनर्स हैं वो उसको देखते हैं। बाहर से फ्लावर्स लाकर उनको यहाँ के एनवायरनमेंट में रखना इज़ नॉट ईजी, बट दे आर डूइंग इट। दे हैव मेंटेन्ड दिस गार्डन सो वेल। सो दिस इज़ लाल बाग। मुगल गार्डन, हमारे दिल्ली की शान, भारत की शान, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन हमारे भारत की शान कहा जाता है। आइए हम आपको मुगल गार्डन के बारे में बताएं। ये देखिए,
telling here that Mughal garden हमारे राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंशियल पैलेस में बनाया गया है. फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर आप जा सकते हैं. इसको जाने के लिए टिकट नहीं लगता है, बट इस गार्डन को देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है. आप जब भी दिल्ली आएँ, और जैसे मैं दिल्ली रहती हूँ, तो अगर हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं देन इन विंटर्स ये बिल्कुल सही टाइम है मुग़ल गार्डन जाने का. इस समय सारे फ्लावर्स फुल स्विंग पर होते हैं इस समय. सो सी दिस. Okay, so the speciality of this garden, of course, क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन में बना है, and of course हमारे दिल्ली हमारे भारत की शान है. Variety of plants, unique trees, bird's eye view, everything is there. अभी आपने एक छोटी सी झलक इस गार्डन की देखी. इतना इसमें देखने में सुंदर लग रहा है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ये गार्डन सुंदर है. बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. हर वैरायटी के फूल, हर कुछ लश ग्रीन ग्रास, बहुत सुंदर गार्डन है ये. So this was Mughal garden. So thank you so much, students. This was the last slide, a visit to a Mughal garden, and we will discuss few more gardens in tomorrow's class, Saturday's class, and I guess Garden of Flowers chapter will be over, and we will start a new chapter. It's a very small chapter, इसलिए 2 classes में ख़त्म हुआ. We have discussed few gardens of India as well, and we will continue this class tomorrow. All right, so till then, take care. See you soon. Bye bye.